Hello, guys. I know this year CET has been full of ups and downs. I would say a lot of them were downs only, ज़्यादातर ups नहीं थे. Even we are pretty disappointed with the way that the exam was conducted. The overall CAP process conducted was also not the best. But we have to have the hope that next year they'll come back to track because last year तक चीजें इतनी खराब नहीं थी and उसके पहले तो चीज पर everything was all hunky dory. So considering all the issues that even they faced this year, let's hope that next year will be better. But this is the time that you guys have to start wondering that are you going to be repeating the exam? This is a video for all the repeaters, not just for the people जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं. This is a video specifically for the people who have that grit कि यार एक और बार ट्राई देना so that मैं ज्यादा अच्छे कॉलेज में जा सकूं. मुझे XYZ कॉलेज में नहीं, I want to try for a JB or I want to try for Simri or Simsri or even something as I want to try for a Wellinger. Can be different for each and every person. But guys, this video में I'm going to tell you not that करना चाहिए नहीं करना चाहिए. I'm going to tell you if you do it, how do you do it and why should you do it, first of all. So let's start. And an example, I would say that I am a reasonable example to take. I myself, when I was a student, repeated the CET 3 times. On my fourth attempt, I ended up getting JBIMS, and I was one of the national toppers at that point. And apart from that, and after that, each and every year I've gotten JBIMS. It has become a personal goal to continue it each and every year, and even my students know it. But let's just see that क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर तुम करने वाले हो रिपीट तो क्यों करना चाहिए, अगर कर रहे हो तो कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें ध्यान देते हैं. चलो. Yeah. So should you repeat the CET 27? Who should take the CET again? Is it worth anymore? So CET exam, first of all, let's start that understanding that CET exam by itself, conductance is bad, but the exam is worth taking because still it is the only exam that opens gates to JP and SIMSRI and the MMS program of Wellinger and all the other colleges which are under MBA CET. मैं सिर्फ ये थिंक कि अभी के लिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि ये 3 से नीचे जाना नहीं होता है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको नीचे वाले कॉलेजेस में जाना होता है वो मेरे पास नहीं आते हैं. आई ओनली हैव, thankfully I can say I have only had students who are aiming just for the top colleges come out to me. So yes, it is still worth it because ये 3 colleges का entry gate तुम्हारे लिए CET exam ही होता है. Toppers actually है. Every year there are still people who are getting into these top colleges. Even if you look at Crackivitiska result, we had this year 41 students through the CAP 1 and 2 round at JBIMS and SIMSRI. This is just the MMS, MSc Finance और ये सब जगह पे MSc Finance MHRD में और students है. ये list और बढ़ती जाएगी. 300 plus students at the top MBA CET colleges if you just consider the top 5 colleges and 1500 plus MBA CET test takers. Now understand, you need to understand that I'm showing you these numbers not to show off in any way, but to tell you that yes, I know exactly what the scenario is and still it is pretty much doable. Who should actually repeat? किनको actually repeat करने का सोचना चाहिए और किसको सोचना भी नहीं चाहिए. For example, repeat करो अगर तुम्हें पता है that मेरा मॉक्स में हाईएस्ट स्कोर 170 आया था बट यार एग्जाम में मुझे 120 आ गया. दैट मीन्स दैट गैप इज स्टिल फुलफिलेबल. तुम्हारी एबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तुमने बस एग्जाम के डे ज्यादा स्ट्रेस ली है. यू कुड नॉट एग्जीक्यूट योर नॉलेज इन द राइट वे ऑन द एग्जाम डे. अगर तुम रियलिस्टिकली एक्चुअली फोकस्ड प्रेप करने वाले हो, तुम सिर्फ ईयर रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो. And when I say time waste, I want you to be extremely strict with yourself. क्या तुम में वो डिसिप्लिन है that तुम एक्चुअली पढ़ाई करोगे या फिर तुम बस फरवरी या जैन में प्रिपरेशन चालू करोगे सीईटी मार्च के लिए. अगर वैसा करना है तो भाई रिपीट मत करो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, नया जॉब ढूंढ लो. द थर्ड वन, योर टारगेट कॉलेज इज विद इन दैट रीच. नाउ अंडरस्टैंड, अगर इस साल तुम्हें मिला है मे बी एन अल्केश दिनेश और मे बी योर गॉट ऑन लाला लजपत राय, a realistic goal would be to look at maybe a Wellinger or maybe a Pumba. If you directly tell me that अरे मुझे ये कॉलेज मिला पर अगले साल तो भाई मैं फाड़ गया हूँ JBIMS अपनी जेब में, normally does not end up happening immediately unless you take you make some very drastic changes in your preparation strategy. And fourth one, the most important, अगर तुम अपना अप्रोच चेंज करने वाले हो तो
एंड आई से दिस हैविंग बर्न्ड माई ओन हैंड्स। मैंने एग्जाम दी, मैं अपना अप्रोच चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत साल वेस्ट करने पड़े। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट। I want you to not waste years. I want you to have a different approach. रूटीन चेंज कर दो, अप्रोच चेंज कर दो, एग्जाम देने का सोचने का पूरा तरीका चेंज कर दो, तो ही होने वाला है एंड तो ही रिपीट करो। इन वॉट कंडीशन शुड यू नॉट गिव, और शुड यू बी लिटिल डाउटफुल देने के बारे में। अगर तुम्हारा मॉक स्कोर जितना आ रहा था तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में उतना ही स्कोर है, अगर तुम 140 150 ला रहे थे, तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में भी 140 150 आया, दैट मीन्स तुम्हारा नॉलेज गैप जितना था वो उतना स्टैग्नेंट है। अब अगर तुम विदाउट अ न्यू टीचर, अगर तुम विदाउट अ मेंटोर जाओगे, तो तुम वापस नेक्स्ट ईयर सेम रिजल्ट लाने वाले हो। तुमने स्ट्रैटेजी कर ली है, पर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज ही बहुत कम है। अगर तुम कोई प्रॉपरली अपना टाइम नहीं निकाल पाने वाले, तुम जॉब करने वाले हो, जॉब से तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम कभी सुबह कभी रात को 1 घंटा ऐसा पढ़ लोगे, तो प्लीज डोंट रिपीट। इट विल रियली कॉज यू टू वेस्ट अ ईयर एंड कॉज यू अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर तुम्हारा गैप बहुत ज्यादा लार्ज है, एज आई सेड, अगर तुम्हें अभी मिला है some random college, PIDT, Pune Institute of Digital Technology and Management, अगर ऐसा कोई भी तुम्हें कॉलेज मिला है, anything that is not in the top 10 and you are aiming सीधा at a JVIMS, it becomes a little unrealistic if you are going to follow the same approach। तुम अगर खुद से पढ़ाई करने वाले हो तो, एंड अगर तुम्हारा सेल्फ स्टडी अप्रोच सेम रहने वाला है जो तुमने लास्ट ईयर किया था, then please don't repeat the exam। You are writing your own future in stone by repeating the exam, और तुम वापस नेक्स्ट ईयर डिसअपॉइंट हो सकते हो। आई डोंट वांट दैट फॉर यू। इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डोंट डू एन एमबीए, पर एमबीए करना है तो अच्छे कॉलेज से करो। दिस इज माय सजेशन टू यू एज एन एल्डर ब्रदर and not as a teacher, not as somebody who's trying to sell you anything. I just want to be as loving to you as possible right now. Now, मेरा अपना, I can tell you that I have had an epiphany, I've had a realization that okay, this is definitely doable। मेरा अपना देखो, when I was following the same approach, तब मेरा क्या हो रहा था, मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा था, मैं खुद से कर रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई भी रैंडम बुक्स उठाता था। इनफैक्ट द ईयर दैट आई स्कोर्ड द लोएस्ट वाज द ईयर दैट आई टुक द मोस्ट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। आई एंडेड अप टेकिंग 64 मॉक टेस्ट एवरी ईयर। मुझे लग रहा था भाई इस बार तो हो जाना है, इस बार तो हो जाना है, इस बार हो जाना है, पर नहीं हो रहा था, और हर बार इनफैक्ट मेरा परसेंटाइल नीचे जाता रहा। दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। फाइनली व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट वेंट रॉन्ग, मैं क्या गलत कर रहा था, मैंने एक्चुअली अपनी पुरानी सारी मेथड्स कचरे में फेंक दी, एंड आई स्टार्टेड एवरीथिंग अफ्रेश विद द राइट वे ऑफ सॉल्विंग। आई एक्चुअली गॉट अ मेंटर हु रियली हेल्प्ड मी आउट। आई वुड लाइक टू नेम हिम, हिज नेम इज मिस्टर विनायक। Vinayak sir, I call him. He is the one who trained me, and that person literally changed my entire approach to the exam. He was not my teacher. He was the person who told me how to think about the exam, how to change my attitude, how to change the way that I am preparing for the exam। ये सारी चीजें मैंने चेंज की। उसके बाद आफ्टर माय 4th अटेम्प्ट, मुझे हर एक साल जब मैंने सीईटी दी है, मुझे हर बार जेबीएमएस लगा है। द पॉइंट इज, अगर अप्रोच गलत है तो कभी भी तुम्हें कॉलेज अच्छा वाला नहीं मिल पाएगा, एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। आई कन्वर्टेड जेबीएमएस ऑन माय 4th अटेम्प्ट, which was the only good attempt or the right attempt that I had with the right strategy। The difference was my approach to study was absolutely bad। Now my CET journey, अब देखो, जब मैं खुद से पढ़ रहा था, जब मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा था, सिर्फ मॉक्स दे रहा था, एनालिसिस कर रहा था, मॉक दे रहा था, एनालिसिस कर रहा था, जब पढ़ाई करने का कोई तरीका नहीं था, that is when my percentile went from 99.67 to a 99.05। ये अटेम्प्ट 3 to 4 है। अटेम्प्ट 3 से 4 में I was still working. I was working my full-time work। I was at that point digital marketing। I was managing digital marketing for quite a few brands at that point। And during that time I realized भाई मैंने जो किया वो सब गलत किया है। Once I realized that, my score literally shot up and I ended up getting JBIMS। मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर की कमी थी। अगर स्ट्रक्चर मिल जाता, अगर मुझे पहले ही स्ट्रक्चर मिल जाता, if I had the right guidance, then I could have cracked JBIMS in the first time itself, क्योंकि मेरा नॉलेज इतना ज्यादा गैप नहीं था। Which is what happens with a lot of students। The point is that ये क्वेश्चंस अपने आप को पूछो, क्या तुम्हारी मॉक सीलिंग और एक्चुअल स्कोर जो सीईटी में आया वो गैप कितना बड़ा है? तुम्हारी वीकनेस खाली एक सेक्शन में है, या फिर तुम्हें सारे सेक्शंस थोड़े वीक है?
एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम जिस कॉलेज, अगर तुम रिपीटर हो तो तुम्हें जो कॉलेज मिल चाहिए और तुम्हें जो कॉलेज मिली है, इनका गैप कितना बड़ा है? इज इट रियलिस्टिक टू say that next year मैं ये कॉलेज लेके आऊंगा if I'm preparing by myself? I can tell you for sure that भाई I'm gonna help you out with whatever I can. For example this, ये मैंने खुद किया था। कौन से स्किल की कौन से सेक्शन में कितनी ज्यादा जरूरत है या फिर उसमें मेरा लेवल क्या है। एडवांस टॉपिक्स सबसे ज्यादा क्यूए में जरूरत पड़ती है, डीआईएलआर में कम, और वीआरसी में एडवांस मेथड जो मैं पढ़ाता हूँ आरसी के लिए, पैराजम्बल्स के लिए, वो सब बहुत फायदेमंद है। लोग डीआईएलआर में ही ध्यान देते रहते हैं पर एक्चुअली क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं, क्वांट्स में सिर्फ उनको यूट्यूब वाला पुराना मेथड चाहिए। सिमिलरली रीडिंग स्पीड, इट इज वेरी क्रिटिकल टू बी एबल टू सॉल्व एंड रीड फास्टर। वीआरसी में लोगों को लगता है फास्ट रीडिंग करना है, नहीं, उधर समझ के रीडिंग करना है। डीआईएलआर में फास्ट रीडिंग चाहिए। लोगों का पूरा अप्रोच गलत होता है। इफ यू रियलाइज इन ऑल ऑफ दिस, वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द वन थिंग जो तीनों सेक्शंस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और लोग टाइम मैनेजमेंट ही भूल जाते हैं। वो लोग पढ़ाई करते हैं विदाउट अ टाइमर, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं विदाउट अ टाइमर, और देन बाद में मॉक टेस्ट में आता है टाइमर और वो पूरे के पूरे डर जाते हैं और उनका मॉक टेस्ट बिगड़ जाता है। यस, आई एम टॉकिंग टू यू जिसको लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक, सर मॉक के बाद तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ सर, पर मॉक के टाइम नहीं सॉल्व हो पाता है। दैट इज एन इश्यू विद टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दो चीजें संभालनी पड़ती है, विच इज व्हाट आई हेल्प आउट माय स्टूडेंट्स विद द मोस्ट। नाउ जस्ट टू हेल्प यू आउट, वी हैव स्टार्टेड अ स्पेशल रिपीटर्स बैच। ये बैच में सिर्फ सीईटी के रिपीटर्स है, कोई भी फर्स्ट टाइमर नहीं आ पाएगा। वी आर लिटरली, बिकॉज आई नो दैट यू गाइज हैव स्कोर्ड also something, we have discounts of up to 8,000 on this package, and this is literally my elite advantage package जिसमें I personally make sure that each and every student is counseled well। मैं mock PD session, मतलब मैं खुद live mock solving तुम्हारे सामने करता हूँ। I teach you my strategies, I teach you everything from top to bottom। this Especially this batch, the repeaters batch, will have the most influence that I will have on the entire batch, because I'm gonna make sure that you bloody hell end up getting one of the top colleges। ये मेरा पूरा अटेम्प्ट रहेगा for all of you, and obviously I give a 97 percentile guarantee। Please don't say that 97 percentile में जे भी नहीं मिलेगा। I'm saying that, I say this because I'm the only one who cares enough that मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। बाकी जगह पे तुम एक बार ज्वाइन कर लिए, बाद में दे डोंट केयर कि तुम आ रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गेट यू 97 परसेंटाइल। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू रिफंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, बाकी सब काम मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तुम्हारा रिजल्ट लेके आने का। आई एम द ओनली वन हु इज प्रोबेबली एट दिस पॉइंट केयरिंग इनफ टू गिव यू दैट गारंटी। दैट्स समथिंग दैट आई कैन से विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। द बिग 3 कॉलेजेस, दैट इज जेबी, सिम्स, वेलिंगकर, इन तीनों का कंपैरिजन वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, एंड इट हैज बीन अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। यू गाइस कैन सी इट। My attempt will be to try to get you into these 3 colleges in the best way possible, and anything less than that, if you are aiming at a lower graded college, then I'm probably not the best teacher for you, because I am only here to teach students who want to go for the top colleges. You want a better future, you want a better admission, you want a better score, then I'm the person that you can contact, and we have proved this year on year। And I'm not saying this just to show off, I'm saying this because I'm the one who cares that तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, because I myself, as you can see, have been a person who was not cared for। मुझे पता है क्या गलत जाता है, क्योंकि सारी गलतियां जो तुम कर सकते हो वो सारी मैंने की हुई है। आई विल मेक श्योर तुम मेरी गलतियां ना करो, ठीक है? So yeah, if you guys are planning on repeating, if you guys do need anything from me, then at this point I'm here to help you out with whatever I can। चलो, I hope this video was helpful। I hope you are clear in your head, and if you need anything, you have that confidence that you can ask me। Bye guys।